Hello dear students, this is Dilip sir welcomes all of you to today's chemistry class. Today we continue with the same topic, colloidal solution, and this is second lecture. I think today we will complete the course and I am hopeful that all your topics in second year is going to be completed today. So before proceeding to have today's discussion, थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम क्या क्या सब पढ़े थे. ठीक है. In the last class we had discussed about solution, means it is a mixture of two or more substances, okay, and then we classified the solutions on the basis of a size of a solid particles as on the basis of size of solid particles as a true solutions, suspensions and a colloidal solution. True solutions are those where the size of a solid particle is less than 10 angstrom. Clear solution, transparent solution can be filtered by any filter paper or ultrafiltration. It cannot be separated by any filtration. Next is suspension, where size of a solid particle is more than 1000 angstrom. They undergo sedimentation, either they can float or undergo sedimentation. They cannot be filtered by any filter paper. They can be filtered, they can be filtered by any ordinary filter paper. They are unstable solutions, and in between these two extreme solutions, true solution and a suspension, there comes another solution which is the subject of our discussion, that is colloidal solution, where the size of a solid particle ranges between 10 angstrom to 1000 angstroms, almost clear solution, almost transparent, almost stable. They show Brownian motion, Tyndall effect, Ilotop वगैरह सारी properties वो दिखाते हैं. ठीक है. And colloidal solutions are the heterogeneous solutions in which the dispersed phase are homogeneously, or the macroscopic particles, or you can say the microscopic particles of dimensions 10 angstrom to 1000 angstroms are uniformly distributed or dispersed in another medium called as dispersion medium. जो true solution में हम जिसको सॉलिड कहते हैं, यहाँ पे उसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, जो उसको वहाँ पे सॉल्वेंट कहते हैं, यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं. ठीक है. देन वी क्लासिफाइड द colloidal solutions on the basis of physical states of the dispersed phase and dispersion medium as 80 colloidal systems. 80 colloidal systems like your sol, gel, emulsion, solid sol, वगैरह वगैरह. We have already discussed. Then on the basis of a nature of colloidal particles, we also classified them as a multimolecular, macromolecular and associated colloids. Then on the basis of interaction between a dispersed phase and dispersion medium, we again classified them as lyophilic and lyophobic colloids. Lyophilic colloids are highly stable, prepared by direct mixing, reversible. The observed colligative properties are lower, and there is greater affinity of dispersed phase towards dispersion medium. ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं. लेकिन लियोफोबिक में क्या होता था? लियोफोबिक के अंदर जी लेस अट्रैक्शन और लेस अफिनिटी फॉर डिस्पर्स्ड फेज टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम, अनस्टेबल, दे नीड स्टेबलाइजर, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मिक्सिंग, irreversible. Observed colligative properties are almost similar with the dispersion medium, viscosity almost similar with the dispersion medium, surface tension is almost similar with the surface tension, वगैरह वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं. Finally, we discussed about the preparation of colloidal solutions. जैसे कि there are two methods. All the processes are classified into two categories, dispersion method and another is condensation or aggregation method. In dispersion method, the coarse particle, that is suspensions, are converted into colloidal solution. Here, the true solutions are converted into colloidal solutions. There are three types of dispersion method. Your one is your mechanical dispersion, electrodispersion and peptidization. And that aggregated or the condensation processes are basically chemical methods like oxidation, reduction, double decomposition, solvent exchange and hydrolysis. These are the methods we have already studied. These were the things that we have already studied in the first class. So today's discussion, very important and exciting part, that is purification of colloids. कोई सिलेबस में तो इसके कोई पुष्टि नहीं है, फिर भी मैं कुछ बता भी देता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं, क्यों होता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. और गोल्ड नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एंड एट लास्ट एमुल्सन एंड इट्स टाइप्स. ठीक है.
चलिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलर्ड्स। कॉलर्ड को क्यों प्यूरिफिकेशन करना जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ गई कि कॉलर्ड्स को हमको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं ना, जिस मेथड से बनाते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, कुछ क्रिस्टल इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, कोई बाई प्रोडक्ट के रूप में हो, कोई ऑन रिएक्टेड रिएक्टेंट्स में कुछ रह गया होगा, सो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बिकम इम्प्योर। किसके वजह से, उसमें कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल किसको कहते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। और उसी कॉलॉइड को प्यूरिफिकेशन करना मीन्स उससे जो क्रिस्टल इम्प्योरिटीज है ना, उसको सेपरेट करना है, उसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। और देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स, one is there are two different methods, one is dialysis, another is through ultrafiltration. Dialysis again are for two types, your Grams dialysis process or electrodialysis process. Very simple, you take a hollow cylinder, fit it with fix it with a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, you know, semi-permeable membrane is that one through which only solvent can pass through, and you put that impure colloid, and then you put that system into water, so that whatever crystalline impurities are there, they will pass through the membrane, and with running water they will be eliminated. If you put electrical field in that solution, if crystalloids are ionic, they produce ions, so ions will be easily separated under the influence of electrical field, and that process of purification, that dialysis will become faster. And the instrument used for purification of dialysis is called as a dialyzer. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड, शरीर में जो ब्लड है ना, वो ब्लड एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और जो हमारा जो किडनी होता है ना, वो किडनी इज ए डायलाइजर। रोज रोज ब्लड में जितने सारी, शरीर में जितने सारी गंदगी मिलती है, ब्लड इज ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, ऑक्सीजन कैरी करके हर एक पार्ट में पहुंचाती है, और जितने सारे बाई प्रोडक्ट्स वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं, उसको सब वो कलेक्ट करके लेके आती है, एंड इट गेट्स प्यूरिफाइड। सारी की सारी इम्प्योरिटी को वही जो तुम्हारा किडनी होता है ना, वहीं से वो प्यूरिफिकेशन होते हैं। तो किडनी इज द डायलाइजर फॉर ह्यूमन सिस्टम और फॉर एनी mammals, right? Another is your ultra purification is just you have to forcibly pass some colloidal solution through pores of filters where the pore size is almost 0.01 micron. If you forcibly pass that colloidal solution through any pores, automatically the colloidal solution cannot penetrate through that pores, they will be separated, and the crystalline impurity they can all pass through that those pores easily, and your colloidal solution or colloids can be purified. ठीक है, ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। आज हमारा ये रहा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हेटेरोजेनिटी, ये हर एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एक अपना प्रॉपर्टी है कि हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है? कॉलॉइडल सॉल्यूशंस देखो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन कंटेन्स इमिसिबल फेजेस, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं होते लेकिन फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। ये तो हमारा इंडियन सिस्टम है, हमारा सोसाइटी, हमारा परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही तो कॉलॉइडल सिस्टम है भाई। इंडियननेस, इंडियन इज आवर आइडेंटिटी। उसके अंदर में कई सारी मजहब की, कई सारी धर्म की, और कई सारी भाषाओं की, कई सारी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, कई सारे तरह तरह के लोग रहते हैं, भाईचारा में रहते हैं, आपस में रहते हैं, कोई अपना धर्म नहीं खोता है, कोई अपना परिचय नहीं खोता है, ठीक है, फिर भी मिलजुल के रहते हैं ना। इससे बेहतर एग्जाम्पल हमको नहीं मिलेगा। तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी होता है ना, परफेक्टली कॉलॉइडल सिस्टम होता है। हेटेरोजेनिटी, अंदर में देखो अलग अलग है, बाहर से देखो होमोजिनस, इट लुक्स होमोजिनस, आज भी ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन अंदर झांक के देखोगे तो डिस्पर्स्ड फेज पाओगे, डिस्पर्सन मीडियम पाओगे, अलग अलग हैं, फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। इसको कहते हैं कॉलॉइडल सिस्टम, और ये हेटेरोजेनिटी इज इसका कैरेक्टर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन स्टेट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे, जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point,
ऑस्मोटिक प्रेशर, सारे के सारे प्रॉपर्टीज है ना वो डिपेंड कर रहे हैं उसी सोल्यूशन के अंदर में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं ये सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाएगी, और इफेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगी, कम होंगे तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज तुम्हारा वैल्यू कम होती जाएगी। तो मान लो मैंने दो सोल्यूशन लिया, एक कॉलोइडल सोल्यूशन लिया सेम कंसेंट्रेशन का, और उसी कंसेंट्रेशन का मैंने लिया तुम्हारा ट्रू सोल्यूशन। देखो कॉलोइडल सोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है, दे आर यूनाइटेड टुगेदर, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे घट जाता है। वहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। तो इन ट्रू सोल्यूशन और क्रिस्टलाइड सोल्यूशन, so the number of effective particles is more. Here the effective number of particles is less because they are aggregated, they are associated. Hence, the colligative properties are lower here. The colligative properties are higher in any true solutions or any solution of any crystalloid. Right? Another important property, चलिए optical property. Very very important property. हर एक एग्जाम में जबरदस्त सवाल इससे पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है भाई, लाइट। बाय यूजिंग लाइट वी कैन स्टडी दिस प्रॉपर्टी, एंड दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी फेनोमेनन वाज वेल स्टडीड बाय जे टिंडाल एंड इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। पूछे जाते हैं डिस्कस द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स टिंडाल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट भाई? देखो यू सी, यू जस्ट लुक इनटू द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देखिए टिंडाल इफेक्ट में समझा रहा हूं। देखो यू टेक ए कॉलोइडल सॉल्यूशन इन एनी वेसल, इन एनी बीकर, ट्रांसपेरेंट वेसल में आप कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लीजिए। एक लेंस के थ्रू यू जस्ट अलाउ एनी लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मीन्स लाइट को फोकस करो, जैसे कि सॉल्यूशन के बीच में वो फोकस के रूप में वो लाइट वहां पे गिरेगी। दैट मीन्स यू एडजस्ट द फोकस इन द middle of the solution. After the focus, the light will move away. They will meet at the focus and they will go away. That means the focus of the light must be in the middle of the beaker. And you view the light, you view, ऐसे आपने लिया बीकर में, you view perpendicularly. Light इसी डायरेक्शन में, light इसी डायरेक्शन में पास किया, you view the solution ऊपर से, देखो ऊपर से at perpendicular direction, either in naked eye or through any microscope. You will see the path of the light appears colored. ऐसा नहीं कि ब्लू कलर हमेशा, कई की किताब तो ब्लू कलर लिख देते हैं, वो गलत है। The path of the solution, path of the light looks colored when viewed perpendicularly. ऊपर से देखो कलर दिखाई देगा, and that path looks like कोन शेप्ड, आज भी टू कोन्स आर मीटिंग, दो कोन्स, कोन है ना जो आइसक्रीम का जो कोन है ना, दो कोन जैसे कि फोकस में मिल रहे हैं, दो कोन की तरह, यहाँ ये कोन, दो कोन इस वेसल के बीच में। सो दैट पाथ अपीयर्स लाइक ए कोन, इट इज कॉल्ड टिंडाल कोन। सो व्हेन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन टेकन इन ए ट्रांसपेरेंट वेसल, kept in a dark room and viewed in a perpendicular direction, it is seen that the path of the light is illuminated by some colors, and that path looks like a Tyndall, it looks like a cone, as if two cones are meeting at that focus point, called a Tyndall cone. What is the cause? Let me tell you one thing. True solutions, dispersion medium, Liophilic colloids never show Tyndall effect. The only colloidal solution is a Liophobic colloidal solution shows the Tyndall effect. Why Tyndall effect? Why this effect? What is the cause of this effect? It is due to scattering of light. You see the colloidal particles present in the solution. You allow the light to fall on it. The colloidal particles, they absorb the light and transmit at perpendicular direction. यहाँ से लाइट आ रहा है, colloidal particle सारी की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, और on its surface it only scatters at right angle or some closer angles. It scatters that light. So when you view
at that angle you see the path looks colored. It is because of scattering, not due to reflection, not due to refraction, not due to any other phenomenon, only it is scattering effect. Means it absorbs radiation and scatters only one radiation. This is called scattering of light, and that is called a Tyndall effect. And because of this reason, sky looks blue, ocean looks blue. This is only because of a scattering of a light by the particles present in air. You see, air is a beautiful colloidal solution. Here dust particles are present. They absorb radiation from sunlight and scattered only blue color. They scattered blue color, that is sky looks blue, and ocean is also a colloidal solution. The colloidal particles also absorb sunlight and scatters a blue color light from its surface. That is why ocean looks blue, sky is blue. Of course, in many of our colloidal solutions, the path also looks blue, but the color depends not only on the color is not always blue, depends upon size of the colloidal particles. Okay. The conditions for colloidal solutions to exhibit Tyndall effect, what are the conditions? जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, ट्रू सॉल्यूशंस की जिंदगी में ये फेनोमेना नहीं है. लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशंस भी ये भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं. और डिस्पर्सन मीडियम की बात तो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ लियोफोबिक. क्यों? कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन the refractive index of your dispersed phase and dispersion medium must be largely different. The refractive index value must be different, highly different. So that what happens in liyophilic colloidal solution? You see, liyophilic colloidal solution में क्या हो रहा है? The dispersed phase has greater affinity for dispersion medium. दोनों के बहुत ही प्यार है, मोहब्बत है. तो इसलिए क्या होगा? The dispersion medium will surround, वो जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, उसी मॉलिक्यूल को वो चारों तरफ घेर लेंगे. इफ दे कर्डन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, आप बताइए उसके सरफेस के ऊपर स्कैटरिंग हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा ना. वो जो डिस्पर्सन फेज है ना, वो करने ही नहीं देगा, लाइट को स्कैटरिंग करने सारे के सारे ऑब्जर्व भी कर सकता है. ठीक है. इसीलिए लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशंस नेवर शो टिंडल इफेक्ट. माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात, व्हेन लाइट पासेस थ्रू दैट कॉलोइडल सॉल्यूशन, यू हैव टू व्यू इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बिकॉज स्कैटरिंग इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स. फेवरेबल एंगल इज राइट एंगल. इफ यू लुक एट द सेम डायरेक्शन, लाइट इधर से आ रहे, आप इधर से देखोगे, यू विल सी टोटली डार्कनेस, नो कलर. पहला कंडीशन, द साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स मस्ट नॉट बी, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, बट ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. जो लाइट आ रहे हैं ना, हम यूज कर रहे हैं ना, उसका जो वेवलेंथ है, उससे जो सॉलिड पार्टिकल मींस डिस्पर्स्ड फेज कॉलोइड्स का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी टू स्मॉल होना चाहिए. नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium should be so different that they would never mix with each other. और लियोफिलिक सॉल्यूशन कभी नहीं बना सकते. कलर ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशंस यू नो दे आर नानो पार्टिकल्स, दे आर ऑल नानो पार्टिकल्स, राइट. तो कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स. साइज ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल, जैसे कि आप ले लीजिए गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लीजिए. ठीक है. वही गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर साइज सबसे छोटा हो, इट लुक्स रेड कलर. और थोड़ा सा साइज चेंज किया, बड़ा किया, वही गोल्ड कॉलोइडल पार्टिकल 10 एंगस्ट्रॉम से तो 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ना रेंज, जब सबसे छोटा था रेड कलर दिखाई देता था. अगर साइज हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो इट विल लुक पर्पल कलर, और बढ़ाएं ब्लू कलर, और बढ़ाएं गोल्डन कलर. तो बताओ कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर साइज, राइट. ये रहा तुम्हारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी मीन्स ब्राउनियन मोशन. व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? व्हेन you take few drops of a colloidal solution
ऑन ए स्लाइड, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं ना जाके, यू टेक फ्यू कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑन स्लाइड and a view through a powerful microscope, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब ताज्जुब हो जाओगे कि क्या उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो आपने किसी कमरे पे बैठे हो, सुबह सुबह बैठे हो, दरवाजा खिड़की सब बंद है और मॉर्निंग 8 या 9 बजे मान लो, और सनलाइट इज कमिंग इनटू दैट, सोचो, और इफ सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी स्काईलाइट इनटू दैट डार्क रूम, आपको क्या नजर आएगा? यू लुक इनटू द पाथ ऑफ द लाइट, यू सी लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पता नहीं कहां से आते हैं कहां से जाते हैं, दे इल्यूमिनेट, चक चक करके चले जाते हैं, आते जाते हैं। ऐसे तो अभी तो कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी सिचुएशन में you look into the path of the light, it is filled with a large number of dust particles, इतने dust particles हैं, तो और they are always in motion, पता नहीं किसी डायरेक्शन से कौन आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं। उसी तरह when you view the colloidal solution through microscope, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन तो बाहर में देखने को तो स्थिर है, कुछ हलचल नहीं है, लेकिन अंदर में देखोगे तो लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ सनलाइट, हियर द कोलोइडल पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, इधर सब आ रहे हैं जा रहे हैं, दे आर इन सीजलेस मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक गैस मॉलिक्यूल इधर उधर हमेशा भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी तरह द कोलोइडल पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन जिगजैग मोशन इन दैट कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड दैट फेनोमेनन वाज स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्राउन, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने ये गजब का चीज देखा कि हमेशा वो मूव करते रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब मुझे बताइए ब्राउनियन मोशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? ब्राउनियन मोशन की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं। अगर वो मोशन में नहीं होते हैं ना, जब तक चलता रहता है जिंदगी है, मीन्स दे आर ऑलवेज इन मोशन, दैट इज दे आर स्टेबल, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका कुछ नहीं कर सकता है। अब बारी है कि मोशन कहां से आ रहा है, उनको कौन मोशन में रख रहा है, मोशन की वजह क्या है? मोशन की वजह यह है जो डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल हो तो हमेशा मोशन में रहते हैं। डिस्पर्सन मीडियम कोई सॉल्वेंट है, दे आर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। व्हेन डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अलोंग विथ देम, उनके बीच में टक्कर होता है ना, धक्का मारते हैं, टक्कर मारते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल्स एंड डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल। वो डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल तो उनको बैठने नहीं देते, रेस्ट ही नहीं देते, हमेशा धक्का मारते। बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन they are always in motion, and because of that motion, continuous and constant collision, motion is there, and in every moment they change their direction, and this is called zigzag motion, and that zigzag motion is nothing but Brownian motion. And because of that Brownian motion, you see here in the screen, you see how the molecules are in zigzag motion, इधर से आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, they always change their direction with each collision, ठीक है? That is Brownian motion, and Brownian motion makes colloidal solution stable. Okay? Another गजब का प्रॉपर्टी है electrical property of a colloidal solution. Electrical property, the most important phenomenon is your electrophoresis. Electrical property means colloidal particles, remember, very very important, colloidal particles carry some charge, they carry some charge with them. colloidal particle के पास खुद अपना ही चार्ज होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है। colloidal particle they carry one type of charge, होगा तो सबका पॉजिटिव चार्ज होगा, सारे के सारे colloidal particle का पॉजिटिव चार्ज होगा, या होगा तो सबकी नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में दो तरह के चार्ज नहीं देखने को मिलेगा। कोलोइडल पार्टिकल के अंदर में दो तरह के चार्ज नहीं होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। द कोलोइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको कहते हैं पॉजिटिव सॉल।
the colloidal solution containing negatively charged colloids are called as negative salt. ठीक है. When electric field, सोचो अगर कोई colloidal solution में सारे के सारे colloidal particles पॉजिटिव चार्ज हो. क्यों हुआ, क्यों एक ही टाइप का चार्ज होते हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन सोचो अगर सारे के सारे colloidal particles के चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी देर के लिए मान लो पॉजिटिव चार्ज है भी तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके पास भी हो सकता है. अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे और थ्रू दैट इलेक्ट्रोड करंट इज पास्ड, क्या होगा बताओ. सारे के सारे colloidal पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां भागेंगे, कहां जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड. मीन्स all the positive charged colloidal particles will move whole as a whole will move towards that cathode. Unidirectional motion, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. That motion is called as electrophoresis. That motion is called as electrophoresis. Okay. इन colloidal solutions जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, colloidal particles के पास कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं. किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसी के पास नेगेटिव चार्ज होता है. और जिस colloidal solution में colloid के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव सॉल्ट, और जिस colloidal solution में colloid के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव सॉल्ट. जैसे कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, एल्यूमिना हो, हाइड्रेटेड एल्यूमिना हो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो जितने सारे colloidal solutions होते हैं ना वो सब पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं. और नेगेटिव सॉल्ट कौन होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, और तुम्हारा जो स्टार्च हो, गम हो, जिलाटिन हो, चारकोल की जितने सारे colloidal solutions वो नेगेटिव सॉल्ट्स होते हैं. तो सारे के सारे एक ही सॉल्यूशन में जितने सारे colloidal particles उनका एक ही चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. बात ऐसा है कि ये चार्ज आई कहां से. अगर मान लो कोई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम लेते हैं, ये तो हमारा समझ में आ जाती है कि Na के सोडियम क्लोराइड ऑन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस Na प्लस एंड Cl माइनस. सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज हो ही जाता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ही जाता है, तो सॉल्यूशन कुल मिला के न्यूट्रल होते हैं. क्या colloidal सॉल्यूशन पूरी तरह से कोई चार्ज होता है? नहीं. colloidal पार्टिकल के पास चार्ज होता है लेकिन सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होता है. अगर colloidal पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो सॉल्यूशन तो जो सॉल्यूशन में और जितने डिस्पर्शन मीडियम है उनके बीच में नेगेटिव चार्ज ज्यादा पाए जाते हैं. तो टोटल मैंने क्या कहा, समझ में आ रहा है ना. अगर colloidal पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर में उतनी नंबर की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट टोटल colloidal सॉल्यूशन बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बात ऐसा है कि कहां से चार्ज पैदा होता है, कहां से चार्ज colloidal पार्टिकल के पास चार्ज, अगर चार्ज नहीं होता, अगर colloidal पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होते वो colloidal सॉल्यूशन ही नहीं बनते, अनस्टेबल हो जाते. सिमिलर चार्ज होने की वजह से तो वो रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को. ब्राउनियन मोशन, एक तो डिस्पर्शन मीडियम, देखो डिस्पर्शन मीडियम तो हमेशा धक्का मार रहा है, उनको बैठने नहीं देता है, एसोसिएशन करने नहीं देता, एग्रीगेशन करने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता. और दूसरा जो आपने पास में जो सिमिलर चार्ज ओहो तो रिपेल करता है, आपस में तो पड़ती नहीं, तो कैसे वो सेटल होंगे बताओ. ये दो रीजन है उनका स्टेबिलिटी के लिए. सिमिलर चार्ज जी मोस्ट इंपोर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर. चार्ज आई कहां से, तीन पॉसिबल रीजन से. नंबर 1 फ्रिक्शन, द डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, दोनों के बीच में जब टकराव होता है ना, कॉलिजन होता है ना, फ्रिक्शन होता है. जब फ्रिक्शन होता है, किसी के साथ फ्रिक्शन होता है ना, उससे कुछ चार्ज पैदा हो जाता है. अब प्लास्टिक चेयर में बैठो, उसके ऊपर हाथ को रगड़ो, देखो कुछ चार्ज तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है ना. सो दोनों सरफेस के बीच में अगर थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है ना, उसके वजह से भी चार्ज पैदा होता है. इसके वजह से भी थोड़ा बहुत चार्ज आ ही जाता है colloidal पार्टिकल्स के ऊपर. एक वजह से, ये बड़ी वजह नहीं हो सकता है लेकिन एक वजह है. दूसरे, मान लो कई सब्सटेंसेस है जो लो कंसेंट्रेशन पर वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन हाई कंसेंट्रेशन पर वो colloidal सोल्यूशन बना देते हैं. जैसे कि सोप, थोड़ा सा क्वांटिटी लिया, पानी ले लो, ट्रू सोल्यूशन है. वही सोप अगर हम ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो colloidal सोल्यूशन बना देंगे. वो कैसे
जैसे कि मान लो सोडियम स्टीयरेट RCOONA, ध्यान से मेरा बात सुनना, ये तो सारी कहानियां हैं, ये कहानियां, इसमें कोई इतना ये लिखने वाला इक्वेशन नहीं है। RCONA, आर में देखो 15 से 18 ज़्यादा नंबर कार्बन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। COON, इसी पार्ट को ध्यान दो, CO माइनस Na प्लस, पानी में डाला क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस चला जाएगा। RCOO माइनस, आर में इतनी सारी हाइड्रोकार्बन है, तो मान लो हाइड्रोकार्बन सार हाइड्रोफोबिक, पानी को तो नफरत करते, दूर से रहेंगे। और भांडुअल्स फोर्स उनके बीच में जो है ना, वो वीक और कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के वजह से क्या होगा, वाटर के साथ तो उनका तो जो रिश्ता है ना, Na प्लस तो अपने वाटर के साथ तो मस्त में रहता है ना, वो तो क्या कहते हैं उसको, हेवीली हाइड्रेटेड होता है वहां पे। ये तो बेचारा जो आर ग्रुप तो पानी के साथ पटती नहीं, इसलिए यहाँ से जो वाटर के साथ जो स्टेबलाइजेशन मिलना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी के द्वारा, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या करें, वो अपने आप में इकट्ठा हो जाएंगे, और वो जो एग्रीगेट हो गए ना, एग्रीगेट हो गए तो अपने आपस में पास में जो नेगेटिव चार्ज था ना, वही नेगेटिव चार्ज उन्होंने रिटर्न किया, वही नेगेटिव चार्ज को उन्होंने रिटर्न किया और एग्रीगेट हो गया, कॉलोइडल पार्टिकल बना दिया। इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज कॉलोइड बना देते हैं। अपना जो चार्ज को वो रखते हैं पास में, और वही चार्ज वही चार्ज की वो कॉलोइडल पार्टिकल ही बनते हैं। ये रहा दूसरा रीजन। तीसरा, दैट इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, मींस सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप और डिटर्जेंट, वो भी तुम्हारा कोई ना कोई चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल बनाते हैं। सो दे आल्सो मेक चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, बी ड्यू टू एग्रीगेशन और एसोसिएशन बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखना, बड़ी गजब की चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ये रहा सबसे जबरदस्त रीजन, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने लिया एक सॉल्यूशन, एक बीकर में लिया, कौन सा सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस, और उसमें मैंने डाला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, थोड़ा सा डाला, देखो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस Ki, ये ज्यादा क्वांटिटी में, ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा एक्सेस, क्या होगा देखो, AgI येलो प्रेसिपिटेट बन गया प्लस KNO3, तो इलेक्ट्रोलाइट K प्लस NO3 माइनस, वो सोल्यूशन में तो डिजोल्व स्टेट में रहेंगे। लेकिन जो AgI देखो, AgI और अंदर में कौन है, KI, AgI is in presence of AgI now is in contact with large quantity of KI, वो क्या करेगा देखो, AgI K प्लस I माइनस, उनका भाई अपना भाई है ना, I इसमें है, वो I इधर में, तो ये क्या क्या करेगा देखो, AgI अपने जो ये मॉलिक्यूल है ना, अपने सरफेस के ऊपर इट विल एब्जॉर्ब I माइनस, बिकॉज इट इज एक्सेस, I माइनस तो बहुत है, तो इट विल एब्जॉर्ब I माइनस, I माइनस को पकड़ लिया, I माइनस को पकड़ लिया, ठीक है, I माइनस को पकड़ लिया चारों तरफ अपने सरफेस में, इट इज एब्जॉर्ब्स प्रेफरेंशियली I माइनस, एंड ये बना दिया तुम्हारा AgI2 complex, it is the colloidal particle having charge, क्या होगा देखो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये रहा जो कॉलोइडल पार्टिकल है ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि I माइनस ions are adsorbed on the surface of a silver iodide because Ki is in taken in excess quantity। बड़ी गजब की चीजें देखो, वो बना दिया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कॉलोइड। दूसरी मैंने क्या लिया यहाँ पे, दूसरी बीकर में, इन सेकेंड बीकर आई टेक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन एक्सेस, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला पोटेशियम आयोडाइड, देखो वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन, AgNO3 के साथ Ki मैंने रिएक्ट किया, क्या बनेगा, AgI प्लस KNO3। अब AgI बनने के बाद AgI बन गया, और AgI ने देखा इसके अंदर में बहुत ही सारे सिल्वर और नाइट्रेट्स हैं,
तो AgI देखा कि अपना भाई यहाँ पे बहुत ही तादाद में है, बहुत ही संख्या में है, तो इसलिए वो क्या करेगा, AgI अपनी सरफेस के ऊपर जो सिल्वर कैटायन को ऑब्जर्व करने लगा। सारे के सारे जितने उसके अंदर में बहुत ही सारे सिल्वर कैटायंस को उन्होंने ऑब्जर्व करने लगा। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड। और सॉल्यूशन के अंदर में कौन पड़ा रहा, नाइट्रेट आयंस। सॉल्यूशन के अंदर में नाइट्रेट आयंस जैसे नेगेटिव चार्ज जितने नंबर की सिल्वर कैटायन है इसके ऊपर में ऑब्जर्व हुई है, और उतने नंबर की नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन के अंदर में मूव कर रहे हैं। इसीलिए टोटली इन टोटो द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल होते हुए भी देखो ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर जबरदस्त चार्ज आ ही जाता है, बिकॉज ऑफ प्रिफरेंशियल सिल्वर आयोडाइड। देखा जब सिल्वर की संख्या ज्यादा में है तो उन्होंने सिल्वर कैटायन को पकड़ लिया, ऑब्जर्व कर लिया। सो दिस इज द बेस्ट रीजन व्हाई कॉलॉइडल पार्टिकल्स दे कैरी or they develop some charge on their own, preferential absorption of ions from the solution, and because of that preferential absorption electrical double layer is formed. Beautiful example, electrical double layer is formed. You see electrical double layer AgI, देखो AgI दो कहानियां ये मैं बता रहा हूं। AgI देखो ये सिल्वर आयोडाइड के पास केस 1 में, देखो केस 1 में सिल्वर आयोडाइड के पास यहां पे तुम्हारा रहा, ये रहा तुम्हारा I माइनस, उन्होंने पकड़ लिया, उसको मैं हटा देता हूं, I- पकड़ लिया। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर में कौन रहा, सॉल्यूशन के अंदर में कौन रहा, ये रहा तुम्हारा, ये रहा नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड, AgI, I- नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड। सॉल्यूशन के अंदर में ये रहा तुम्हारा स्टेशनरी फेज उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, और इसको कहते हैं मोबाइल फेज में K+, ठीक है। अब देखो मोबाइल फेज में पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाते हैं। तो ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस में देखो यहां पे कॉलॉइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज मान लो ये रहा तुम्हारा, ये इंटरफेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई मान लो एक कॉलॉइडल पार्टिकल है कि स्पीयर जैसा मान लो, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बैठ गए हैं तो सॉल्यूशन में जितने अनायंस है ना उसके पास वो दे विल ऑटोमेटिकली कम क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो मीन्स एट द इंटरफेस here is the positive charge, in the solution side there is a negative charge. So at the interface opposite charged there is a parallel congregation, there is a parallel association of opposite charge, and that parallel association of opposite charge at the junction point or at the interface creates a potential, and that potential is called as a zeta potential. Means on the surface of a colloidal particle electrical double layer is formed, and because of that charge, this is the third best reason why charge is developed on or charge is generated on colloidal particles, right. When that colloidal solution, you see electrophoresis, when that colloidal solution is subjected to electrical field interaction, if you allow the current to pass through that colloidal solution, if the colloidal particles are negatively charged, all the colloidal particles will move towards the positively charged electrodes. If the colloidal particles are positively charged, the whole of a colloidal particles will move towards a negatively charged electrode, and this is total migration of a colloidal particles under the influence of a electrical field either towards cathode or towards anode, depending upon their charge, is called as electrophoresis. Another important phenomenon is called as electroosmosis. Reverse of electrophoresis. Electrophoresis क्या हो रहा है, colloidal particles जा रहे हैं, either cathode की ओर से जा रहे हैं या anode की ओर से जा रहे हैं, depending upon their charge.
लेकिन गजब की बात ऐसा है, यहां कॉलोइडल पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम जा रहे हैं। इफ डिस्पर्सन मीडियम मूव्स टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या हो रहा है देखो, बड़ी गजब की चीज है। देखो इमेजिन करो, डायग्राम भी है, डायग्राम भी है, डायग्राम के ऊपर भी देखो, मैं बताता हूं। तो तुम्हारा एक ट्यूब है, ठीक है, एक वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल, उसमें दो पोरस, दो तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो साइड में, इस साइड में उसको तीन हिस्से में बांटा गया, बीच में दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया, और इसी साइड में सॉल्वेंट वाटर, इसी साइड में वाटर, बीच में तुम्हारा कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया गया। इसमें डिस्पर्सन मीडियम, इसमें डिस्पर्सन मीडियम, इसमें वाटर, बीच में कॉलोइडल सॉल्यूशन। ये रहा तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मीन्स तुम कोई पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले सकते हो। देखो मान लो कॉलोइडल सॉल्यूशन में तुम्हारा कॉलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। अगर कॉलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और उसी जो डिस्पर्सन मीडियम इसी साइड में और इसी थर्ड वन, फर्स्ट कंपार्टमेंट थर्ड कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट थर्ड कंपार्टमेंट, दोनों में वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम है, बीच वाला में कौन है? कॉलोइडल सॉल्यूशन है। इसमें इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड चार्ज कनेक्ट करते किसी बैटरी के साथ। व्हेन करंट पासेस, आप देखो कॉलोइडल पार्टिकल तो नहीं जा सकते हैं ना, ये कंपार्टमेंट छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हम पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लेकिन सॉल्वेंट तो जा सकता है ना, बिकॉज इट इज ऑपोजिटली चार्ज। इफ कॉलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, सॉल्वेंट इज नेगेटिव चार्ज, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, सॉल्वेंट इज पॉजिटिव चार्ज। सो सॉल्वेंट अब भागेगा किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ से। If solvent moves through that semi-permeable membrane, solvent तो permission है, it will move towards that electrode and और जिस कंपार्टमेंट की ओर से वो solvent मूव करेगा, the water level, the level of dispersion medium will rise, but solid particle or colloidal particles cannot move. This is called electroosmosis, where only dispersion medium moves towards oppositely charged electrodes depending upon nature of their charge. All right. Next property of a colloidal solution is coagulation, that is precipitation or flocculation of colloids. You know, colloids carry some charge. If you remove those charge and make them neutral particles, then colloidal solution will become unstable and the colloids will be precipitate, they will settle down, they will undergo sedimentation, colloidal solution नहीं रहेगा। अगर उन्होंने चार्ज खो दिया तो ये डिस्पर्सन मीडियम कहाँ तक उनको धक्का मार मार के सॉल्यूशन स्टेज में रखेगा। अगर कोई बच्चे को कितने टीचर हो, पेरेंट्स हो, कहाँ तक धक्का मार मार के प्रेशर दे दे उनको पढ़ाएंगे, अगर उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन के पास अपना चार्ज नहीं रहेगा, खो देंगे तो सॉल्यूशन कैसे स्टेबल होगा बताओ। अगर दैट रिमूवल ऑफ चार्ज और बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, इफ यू डू दैट न्यूट्रलाइजेशन, दे विल अंडरगो प्रेसिपिटेशन, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन, कुछ भी को एक ही बात है। और इट इज डन बाय प्रेसिपिटेशन थ्रू न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब कोई अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की ओर से हो जाते हैं तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के न्यूट्रल बन जाते हैं और देन अंडरगो प्रेसिपिटेशन, देयर खेल खत्म हो जाता है। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, कॉलोइडल सॉल्यूशंस, अपोजिटली चार्ज, मान लो पॉजिटिव सॉल्व नेगेटिव सॉल्व मिला दो, बस वो बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे, एक दूसरे का चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, देन दे विल अंडरगो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पॉजिटिव सॉल्व नेगेटिव सॉल्व मिला दो, काम खत्म। दूसरा प्रोसेस, पहला रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड colloids. Third is boiling. When you boil any colloidal solution, because of a consistent and persistent collision तो बढ़ेगा ना, collision between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase lose some charge. If dispersed phase or colloids lose some charge, automatically they will undergo aggregation or association and they will undergo precipitation. Another is persistent dialysis. You know, डायलिसिस में क्या करते हैं हम, जितनी सारी क्रिस्टल इम्प्योरिटीज है ना उसको निकालते हैं। अगर क्रिस्टल इम्प्योरिटी सारे के सारे निकल जाएंगे तो मीन्स ही उसके अंदर में कोई आयन से अगर नहीं रहेगा तो चार्ज कहाँ से होगा? कॉलोइडल पार्टिकल पर चार्ज कहाँ से आते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट को हम डायलिसिस में पूरी की पूरी निकाल देंगे,
If you remove all the electrolytes, all the ions from colloids, then colloid will have no charge at all. So, they will undergo precipitation naturally. This is another process. Most important process is intentionally, deliberately, if you add electrolyte, electrolyte तो उनका दुश्मन है. मान लो किसी colloidal particle के सब पास positive charge हो, if you add negatively charged ions, automatically it will neutralize the positive charge of colloid and it will make that colloidal solution to precipitate deliberately by adding electrolyte and the oppositely charged ions, the ions of electrolyte, the power of a ion to precipitate or coagulate or flocculate the colloidal particle is based on a law called as Hardy and Schulze rule. Hardy and Schulze rule. मान लीजिए तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड हो, पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमारे पास आनायंस चाहिए. नेगेटिव चार्ज आयंस मीन्स आनायंस चाहिए. मान लो एक आनायन जैसे -1 चार्ज, दूसरे आनायन के पास -2, तीसरा आनायन के पास -3, चौथा -4. अब बताओ प्रेसिपिटेशन पावर किसका ज्यादा होगा? जिसके पास जितने नेगेटिव चार्ज जितने वैलेंसी, जिसका जितने वैलेंसी हो मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका जो प्रेसिपिटेशन पावर, कोआगुलेशन पावर इतना ही ज्यादा. एक ही आनायन के पास 4 नेगेटिव चार्ज, मान लो कितने सारी कॉलोइडल पार्टिकल्स को एक ही आनायन ने न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है. वहीं से जो Cl- हो, Br- एक ही आनायन, एक ही नेगेटिव चार्ज. फेरोसियानाइड ले लो, 4 माइनस मीन्स कितने ताकतवर हो, कितने पावरफुल हो, एक ही आनायन, it can coagulate, neutralize so many positively charged colloids. This is called flocculation power, and that flocculation power is given by Hardy and Schulze rule, which says the coagulating power of electrolyte is directly proportional to fourth power of its valency. ओहो, फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी, अगर वैलेंसी थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, मीन्स उसका जो प्रेसिपिटेशन पावर, कोआगुलेटिंग पावर भयंकर रूप से बढ़ जाता है. हायर द नेगेटिव चार्ज ऑफ आनायन, greater is the precipitating power to do the precipitation of a positive charge colloid. Similarly, if colloid is negative charge, higher is the positive charge or higher is the valence of a positive charge or cations, positive charge ions or cations, greater is the flocculation power or greater is the precipitation power. जैसे कि aluminum cation 3+ has greater precipitating power than magnesium cation than Na+. Okay. Another is gold number. What is gold number? The number made of gold, it is not a number made of gold. Gold number means gold is a colloidal solution. Gold is a colloidal solution. लियोफोबिक, अनस्टेबल, उसको चाहिए स्टेबिलिटी. कौन देगा? लियोफिलिक कॉलॉइड्स देते हैं, जो खुद स्टेबल, जो खुद सुरक्षित रहते हैं ना, और दूसरे को भी सुरक्षा देते हैं. दो लियोफिलिक कॉलॉइड्स, देखो यू टेक 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन. जैसे फिल्म में हीरोइन है ना, एक हीरोइन हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो विलन्स आते हैं. इंडियन हीरो, एक ही हीरो 100 विलन को मार के गिरा देता है. तो उसी तरह एक गोल्ड सोल्यूशन लिया, कितना 10 ml गोल्ड सोल्यूशन, ये हीरोइन जैसा है. और उसको जो विलन है ना, कौन है? सोडियम क्लोराइड विलन है. और 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% गोल्ड सोल्यूशन से इतना डर, 10% 1 ml हम डालते हैं. ठीक है. इफ यू पुट add 1 ml of 10% gold solution, it is precipitated. तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए मीन्स वो प्रेसिपिटेशन नहीं होने देना. कितने मिलीग्राम की प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, लियोफिलिक कॉलॉइड्स की जरूरत है. सो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, लियोफिलिक कॉलॉइड, व्हिच मस्ट बी एडेड टू 10 ml of a gold solution in order to protect it from precipitation. When 1 ml of a 10% NaCl solution is added to it, 1 ml of a 10% solution जो जब हम ऐड करेंगे, उससे बचाने के लिए 10 ml गोल्ड सोल्यूशन को बचाने के लिए प्रेसिपिटेशन से कितने मिलीग्राम की प्रोटेक्टिव कॉलॉइड चाहिए, लियोफिलिक कॉलॉइड चाहिए, उसको ही कहते हैं गोल्ड नंबर. मीन्स गोल्ड सोल्यूशन को बचाने के लिए कितने मिलीग्राम की प्रोटेक्टिव कॉलॉइड चाहिए. जितने तादाद में गोल्ड नंबर जितना होगा ना, प्रोटेक्शन पावर उतना ही कम है.
हायर द गोल्ड नंबर, और 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल्यूशन को बचाने के लिए अगर 100 मिलीग्राम की जरूरत है और दूसरा 1 मिलीग्राम काफी है, तो बताओ एक आदमी अगर प्रोटेक्शन दे रहा है तो उसका प्रोटेक्शन पर तो ज्यादा ही है ना। सो हायर द गोल्ड नंबर लेसर इज इट्स प्रोटेक्शन पावर, ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट इज योर emulsion. What is emulsion? It is a colloidal system, colloidal solution where dispersed phase and dispersion medium both are liquids, both are liquids, ठीक है। And emulsions are the colloidal solutions for any two immiscible liquids. They are of two types. One is the oil in water type, oil in water type, and water in oil type. Oil in water type मतलब water is the dispersion medium, water is the dispersion medium, oil or fat is the dispersed phase, oil or fat is the dispersed phase. That oil or fat is uniformly distributed inside that water. जानते हैं मिल्क, मिल्क में ज़्यादा वाटर ही होते हैं ना, जो तुम्हारा जो घी होते हैं ना वो ऑयली होते हैं। मिल्क में कभी देखने से पता चलता है कि कहाँ पे घी है, कहाँ पे दैट फैट्स है, नहीं ना, तो वहाँ पे फैट कम है और डिस्पर्स्ड फेज, वाटर ज़्यादा है, इसीलिए उसको कहते हैं वो तो एमुल्सन है, बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, लेकिन हियर फैट और ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड वाटर इज इन लार्ज क्वांटिटी। मिल्क और वैनिशिंग क्रीम जैसे मुंह में लगाते हैं ना आफ्टर ब्यूटी पार्लर, और जो आफ्टर क्या कहते हैं उसको, जो क्रीम जिसमें मॉइस्चराइज क्रीम होता है ना, उसको लगाने के बाद तुम्हारा फेस ड्राई नहीं होता है। नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल टाइप, वेयर ऑयल इज द डिस्पर्सन मीडियम, ऑयल इज द डिस्पर्सन, ऑयल ज्यादा, उसके अंदर में कहीं पे छुपा हुआ है पानी, जैसे कि तुम जानते हो बटर, बटर, कॉड लिवर ऑयल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कोल्ड क्रीम, ये सारे के सारे तुम्हारा होते हैं वाटर इन ए ऑयल टाइप। अनदर इज एमुल्सिफायर टू स्टेबलाइज द कोलोइडल दैट एमुल्सन, एमुल्सिफायर में जैसे कि सोप, डिटर्जेंट और ऐसे कुछ ऐड करते हैं जो दो अपोजिटिव फेज को मिला के इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द emulsion, so called as emulsifier. Thank you very much for attending the class till the end.